Evening, everyone. Okay. So, did you all practice Patanjali Yoga Sutra? Patanjali. Such a beautiful name it is. Patanjali. पता मतलब पता मतलब किसी को पता है क्या? अरे ये बार बार स्पॉटलाइट जा रहा है. पता मतलब ऑफर करना. पता टू ऑफर. पता मतलब दैट विच हैज ऑलरेडी ऑफर्ड. अंजलि तो पता ही है आपको. ऐसी अंजलि जो ऑलरेडी ऑफर हो चुकी है, दैट इज पतंजलि. पतंजलि. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी says that this is like one of the best names, most beautiful names. इससे अच्छा नाम कोई और हो ही नहीं सकता. That is what he said once, long time back. Patanjali. Okay. So प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? तो आज हम क्या करेंगे? विल डू अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ हठ योगा प्रदीपिका. हठ योगा थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में. और मेनली हठ योगा काफ़ी ऋषि वगैरह ने लिखा है, स्वामी वगैरह ने, लेकिन मेन टेक्स्ट है हठ योगा प्रदीपिका है, एक हठ रत्नावली है, और एक है श्रीनिवासा जी ने एक लिखा है ना, रेफरेंस. दीज आर योर रेफरेंस बुक्स. हठ प्रदीपिका इज रेफर्ड द मोस्ट. और एक घेरंड संहिता है. ये थ्री आर द बेस्ट बुक्स टू नो अबाउट हठ योगा. एक हठ योगा प्रदीपिका जो स्वामी स्वात्माराम ने लिखी है, एक है घेरंड संहिता जो घेरंड ऋषि ने लिखी है, और एक है हठ रत्नावली जो स्वामी श्रीनिवासा जी ने लिखा है. अच्छा, अभी हठ योगा क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज हठ योगा? हाँ मनीषा. Ma'am, something which is stubborn. Stubborn, okay. Hatha. Yes, Shailendra ji, please. Hatha yoga, what understand the poses, asana, whatever we doing today, that is Hatha yoga. Whatever asanas that we are doing is Hatha yoga. Okay. What else? जो भी आपको पता है, सुना है. सुन, उत्कर्ष बाहर लैपटॉप लेके राजेश आया हुआ है. मनीषा जी म्यूट कर दीजिए अपने आप को. हाँ, सॉरी मैम. इट्स ओके. हाँ, बताइए. कल्याणी जी has also joined today. Good to see you. Yoga, ma'am. What? A basics of yoga. Basics of yoga. Okay. ठीक है. और बताइए. भारती जी, नीतू जी. नहीं पता, कुछ नहीं सुना कभी भी हठ योगा के बारे में. निधि. मैम बस नाम सुना है. इतना अच्छा आंसर तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया. उसके आगे नहीं पता क्या है. Is it strict yoga? Strict discipline योगा or Okay. discipline, little concentrated? Okay, that is how it sounds, no? Hatha. Hatha. That is why somebody said stubborn and all of that. Okay.
Any more answers? Ma'am, Uh, what all pranayams and asanas we are doing in everyday life that are hatha yoga only? Asanas. Okay. yoga with something we are doing with a disciplined manner, madam. Okay. Bharati ji, any comments? Shanjika, I already told, ma'am. what did you say? I I missed. said strict and disciplined. Okay, okay, okay. Shanjika, मैम मैंने सुना है, मुझे यही लगता था कि जो हम लोग योगा करते हैं उसी को ही हठ योगा बोलते हैं। अच्छा, जो योगा आसनास करते हैं वो हठ योगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सुनाई देता है ऐसा हठ, stubborn, strict, disciplined, but it's not that. Okay, of course discipline, yoga itself is discipline, self discipline, है ना? hatha yoga is one form of it. लेकिन क्या है hatha yoga? ह और ठ ये दोनों अलग अलग वर्ड से ये बना है। तो ह मतलब ह रिप्रेजेंट्स सन एनर्जी and th represents moon energy. Okay, so sun is what? Hot. Okay, so right side of the nostril, the nadi, represents Surya nadi, right? And left side of the nostril represents Chandra nadi. Tha. Ha is right, tha is left. Okay, अच्छा सब अपने आप को म्यूट रखिए, है ना? So ha and tha. Right side of the nadi is called Pingala nadi. Left side of the nadi is called Ida nadi. So now we know three things. Okay, ha right side, tha left side. Right side represents Surya nadi, left side represents Chandra nadi. Right nadi is Pingala nadi, left nadi is Ida nadi. ठीक है? Hatha yoga. Yoga is what? Union. Hatha yoga is balancing the ha and tha factor of the body. Balancing this Surya and Chandra nadi. Balancing Pingala and Ida nadi. When we balance this ha and tha, Surya and Chandra, Pingala and Ida, Sushumna nadi gets activated. Sushumna nadi is what? The central nadi that pierces through all the 7 important chakras in the body. Right? So, when that Sushumna nadi activates, that is when, the whole Kundalini or the level of Samadhi, different levels of Samadhi is experienced. This is Hatha Yoga. Simple to understand? Yes? Now, स्वामी स्वात्मा राम के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि उन्होंने हठ योगा में क्या बताया, जैसे कि अगर आपको बोलेंगे कि महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है योगा के बारे में, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अष्टांग योग, अष्ट अंग, है ना? उसमें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। राइट? वैसे ही स्वामी स्वात्माराम ने हठ योगा को 4 कंपोनेंट में बताया है। सबसे पहले आसन, फिर कुंभक, मुद्रा एंड नादानुसंधान।
इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। पहला क्या है? आसन, फिर है कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। अब ये hatha योगा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया? अगर आपने टाइमलाइन पढ़ा है सबने योगा का, वैदिक टाइम एंड देन प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, यस। hatha योगा कौन से पीरियड में आया, किसको पता है? Pre-Vedic. I think classical. Post classical. Post-classical. It's post-classical. देख के बता रहे हो क्या? नहीं पढ़ा था इसलिए टेस्ट में था मैम. Confirm करा है देख के. पोस्ट क्लासिकल एरा में hatha yoga came up. तो hatha yoga स्टार्ट किसने किया? Who is, yes Kalyani ji, you're saying something? I'm not getting the name, ma'am. Just now you told. Nath yogis they say. Natha yogis, yes. But who is the one who is like Adi Yoga, matlab the master of hatha yoga? Adinath, sorry, not Adi Yoga. Adi Yoga is Shiva. Adinath, the originator of hatha yoga. उनके नाम से ही हमने एक आसन किया था रिसेंटली. अब तो याद आ गया होगा. Matsyendranath. Yes, Matsyendranath. He, remember this. This is a very important question, you know, generally they ask, who is the originator, the first master of hatha yoga? He is Matsyendranath. Matsya means kya? Fish, right? Indra is what? Lord of all gods. So Matsyendranath is Lord of all fishes. And he heard this knowledge when Shiva was telling this knowledge to Parvati at a riverside. Matsyendranath heard all the knowledge of hatha yoga. Okay, so Shiva is Adi Yogi. Matsyendranath heard as a fish, lord of all the fishes. And then it was passed on to Gorakshanath. So remember this also. Who is known as the father of hatha yoga? Gorakshanath. He kind of made the knowledge of hatha yoga in a more systematic manner. Gorakshanath. Okay, Natha culture में से ही ये पास हुआ है. Okay. So this is one thing. Now, hatha yoga जो है उसमें of course आसन है, कुंभक है, मुद्रा है, which is all related to mostly your physical body, right? लेकिन इसका गोल क्या है आपको मैंने बताया था. Do you remember what is the goal of hatha yoga? Balancing between Chandranadi and Suryanadi. That I understand. But what is the goal of hatha yoga? This I had told you when we did different parts of yoga. To prepare the body for samadhi. Okay. But hatha yoga is not a part of 4 different parts of yoga, right? कौन से ये 4 पाथ के अंडर में hatha yoga आता है? दीदी जी are saying something. अरे कौन unmute है? Self-realization is the
is the ultimate goal for all paths. हाँ वो तो सही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हठ योगा किसका पार्ट है, हठ योगा का गोल क्या है। 4 पाथ याद है ना आपको, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। Oh, ध्यान योग है. यस राइट। हठ योगा का गोल क्या है, राजयोग या ध्यान योग, एक ही है। गॉट इट? सो जनरली पीपल, I don't know, but I have heard this a lot. I don't know whether you've heard or not. But people think that Raj Yoga goes this way, Hatha Yoga goes this way. Because Raj Yoga को ध्यान बोलते हैं और हठ योग लोग ऐसा समझते हैं कि it is body and making body with good strength and you know the structure of the body and all that, and उसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अल्टीमेटली हठ योगा का पर्पस ये है कि आप अपने बॉडी को इतना क्लीन करो, बॉडी को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपका समाधि इजीली अचीव हो जाए, ध्यान आपके लिए एक्सपीरियंस करना इजी हो जाए। गॉट इट? सो दैट इज द पर्पस ऑफ हठ योगा। अगर कोई भी आपको पूछता है कि हठ योगा का पर्पस क्या है, then it is Rajयोग, attaining Rajयोग. Got it? Hatha yoga क्या है? Balancing her and her factor of the body. ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करना। जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होता है तो क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बालकनी में से हवा में एक आदमी लटक रहा है, तो आई गॉट सो सरप्राइज दैट व्हाट इज दिस गाय डूइंग, बट ही इज पेंटिंग द बिल्डिंग, सो ही हैज गॉट all the safety, but I was like suddenly somebody is like floating in the air. Anyway, so got it no, hatha yoga क्या है। ठीक है, तो hatha योगा का कौन सा 4 कंपोनेंट्स बताया मैंने। फर्स्ट क्या है, आसन, आसन, कुंभक, मुद्रा एंड नादोसान। नादानुसंधान। नाद अनुसंधान। अनुसंधान। नाद पता है ना, साउंड। ओके, अनुसंधान, उसका अनुसंधान करना। अच्छा, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। स्वामी स्वात्मा हमने कौन सी बुक लिखी है, हठ प्रदीपिका। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. So now हठ योगा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने क्या किया है, हर एक एलिमेंट्स के साथ हमारे ऑर्गन्स कनेक्ट किए हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी और हमारी कर्मेंद्रियां भी। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। देयर आर 5 एलिमेंट्स। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एलिमेंट कौन सा है, स्पेस, ईथर जिसको बोलते हैं। ईथर को कनेक्ट किया गया है कौन से ज्ञानेंद्रिय के साथ, योर ईयर्स। ठीक है, कान के साथ। अब कान का फंक्शन क्या है, हियरिंग, सुनना। ठीक है, आप ऐसे टेबल जैसा बना सकते हैं, पहले एलिमेंट लिखा, फिर ज्ञानेंद्रियां लिखा, फिर उसका फंक्शन लिखा,
फिर कर्मेंद्रिय लिखा और उसका फंक्शन लिखा। तो पहला है स्पेस। स्पेस कौन से सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है? ईयर्स। ईयर्स का काम क्या है? सुनना। कौन से कर्मेंद्रिय के साथ कनेक्टेड है? माउथ। माउथ का काम क्या है? माउथ किससे कनेक्टेड है? अपने वोकल कॉर्ड्स से, बोलना। गॉट इट? सो राइट दैट। नेक्स्ट एलिमेंट है एयर एलिमेंट। किसी का म्यूट अनम्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। नेक्स्ट एलिमेंट है एयर एलिमेंट, वायु। वायु किसके साथ कनेक्टेड है? अपने स्किन के साथ, राइट? सेंस ऑर्गन स्किन। स्किन का क्या है? सेंस टच, राइट? कौन सा कर्मेंद्रिय के साथ कनेक्टेड है? हैंड्स के साथ। हैंड्स का काम क्या है? होल्डिंग, एक्शन। गॉट इट? रिपीट करूं मैं? एयर, एयर के साथ कौन सा कनेक्टेड है? स्किन। स्किन का काम टच, सेंस। कर्मेंद्रिय कौन सा? हाथ। हाथ का काम क्या है? होल्ड करना, ठीक है? फिर फायर। अच्छा, आपको पता है ना कि ये एलिमेंट्स भी ऐसे सीक्वेंस में है। पहले स्काई, फिर एयर, फिर फायर, वाटर, अर्थ, फिर आएगा अर्थ, सॉरी फायर एलिमेंट। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व किससे कनेक्टेड है? गेस कर सकते हैं हमारे 5 सेंसेस में से? आईज। ओके, अग्नि तत्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आईज। आंखों का क्या काम है? विजन। सो द फंक्शन इज विजन। कर्मेंद्रिय कौन सा कनेक्टेड है फायर के साथ? फीट। पैरों का काम क्या है? चलना, वॉकिंग। ओके, फायर, आईज, विजन, फीट, वॉकिंग। देन वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट किसके साथ कनेक्टेड है? टंग। टंग का काम क्या है? टेस्ट। कौन सा कर्मेंद्रिय है? तो जेनिटल्स। जेनिटल्स का काम क्या है? टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। वाटर, टंग, टेस्ट, genitals, reproduction. Last element is पृथ्वी तत्व, earth element. तो कौन सा बच गया? नोज। नोज का काम स्मेल करना है। और कर्मेंद्रिय कौन सा बच गया? कर्मेंद्रिय एनल, एनस। तो इसमें लिख सकते हैं फंक्शन सिक्रीशन। पृथ्वी तत्व, नोज, स्मेल, एनस, सिक्रीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, इंफॉर्मेशन, राइट? सो रिमेंबर दिस। अच्छा, जो स्वामी स्वात्माराम थे, उनके गुरु या शायद उनके फादर भी हो सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, स्वामी सहजानंद। थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है? तो स्वामी सहजानंद को बोलते हैं कि या तो वो उनके मतलब वो उनके गुरु थे, अरे वो उनके गुरु थे, तो हो सकते हैं सिर्फ मास्टर हो या हो सकते हैं कि पिता के रूप में गुरु हो, ठीक है? स्वामी सहजानंद। और स्वामी स्वात्माराम का नाम, रियल नेम स्वात्माराम योगींद्र। स्वात्माराम योगींद्र उनका पूरा नाम था ये।
अच्छा, जैसे पतंजलि में सबसे पहले क्या बताया, आसन के पहले भी इम्पोर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन एंड just give me लेकिन hatha योगा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना? आवाज नहीं आ रही It's coming and going. मेरी? You all hear me? Ma'am, it's It is breaking. breaking, it's coming and going. मनीषा जी एक बार चेक कीजिए ना, क्योंकि बाकी सब तो हम सब दिखा रहे हैं। Ma'am, your network bandwidth is low. एक बार चेक कर लीजिए अपना नेटवर्क। Now it is clear, ma'am. My network is showing low. Okay, ठीक है। You want me to repeat few things? Did you hear about Swatmaram, Swami Swatmaram's guru? Yeah. It is said that Swami Sahajanand was maybe his father. He was his guru, and full name of Swami Swatmaram is Swatmaram Yogindra. Okay, and like in Yoga Sutras, Maharishi Patanjali has given Yama Niyama as the first step of yoga. कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप आसन प्राणायाम वगैरह करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सीक्वेंशियल है, लेकिन उसमें अलग से यम नियम दिया हुआ है। इसमें लोगों को ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हाथा योगा में कोई डायरेक्ट आसन से शुरू करो, बट ऐसा नहीं है ना। हाथा योगा में भी कुछ नियम है। इसको कहते हैं बाधक तत्व और साधक तत्व। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप अभी सिर्फ लिख लीजिए बाधक तत्व और साधक तत्व, मतलब कौन सी ऐसे तत्व या आपका डिसिप्लिन ऐसा है जिससे कि आपके वो आपका बिहेवियर डिसिप्लिन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। और साधक तत्व मतलब एक साधक को कैसे अपना बिहेवियर रखना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे कि इसको साधक तत्व कहते हैं। ऐसे 6 साधक तत्व है, 6 बाधक तत्व। ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आसन वाला जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें 2 चीजें डिस्कस की गई है स्वामी स्वात्माराम ने। क्या, एक तो आसन चाहिए, कौन से आसन का बेनिफिट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, काउंटर पोज क्या है, ये सारा जो हम करते हैं मॉर्निंग में। इसके अलावा खाने के बारे में भी बताया है ना, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन फूड एंड आसना बोथ आर मेंशन्ड इन द कंपोनेंट अंडर आसना। और सबसे इंपॉर्टेंट आसना माना जाता है जिसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंट आसन, ये आप लिख लीजिए, ये कई बार इसको पूछा जाता है ना। सिद्धासन हठ योगा में सबसे हाईएस्ट लेवल का आसन माना जाता है। Got it? और इसमें ये भी काफी सारा बताया गया है कि आप योगा करते हैं तो आपकी योगा की प्लेस कैसी होनी चाहिए।
हाँ, रिपीट करूं क्या मैं? सिद्धासन, सिद्धासन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस दिया गया है हाथा योगा में। ओके, देन नेक्स्ट इज प्राणायाम, है ना। सेकंड क्या है? प्राणायाम या कुंभक भी बोल सकते हैं आप। तो ये देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। अष्ट कुंभक के बारे में बताया, या इसको संहिता कुंभक भी बोलते हैं, अष्ट कुंभक भी बोलते हैं, है वो सारे प्राणायाम। बट कुंभक आपको प्रैक्टिकल में बताया होगा ना, कुंभक लगाना किसको बोलते हैं, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। तो ये है, और इसके साथ 6 क्लेंजिंग टेक्निक, शुद्धि क्रिया के बारे में बताया है। हाँ निधि, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी आपको आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो 6 क्लेंजिंग प्रोसेसेस हैव बीन गिवन। तो स्वामी स्वात्माराम ने कंपल्सरी नहीं, हम ये बोलते हैं कि सबको शुद्धि क्रिया करनी चाहिए, सबको षट क्रिया प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। सो that is what is mentioned by घेरेंडर ऋषि। और स्वामी स्वात्माराम कहते हैं कि जिसकी बॉडी में एक्सेस फैट है, एक्सेस म्यूकस है, उनको म्यूट कर रही है। गॉट इट। तो प्राणायाम अष्टकुंभक में कुछ 6 क्लेंजिंग टेक्निक के बारे में भी बताया गया है, और मैम कुछ क्लियर अष्टकुंभक के नहीं बारे आ में भी रहा है। बताया गया है। आगे बताऊंगी मैं आपको फ्यू फर्दर। Ma'am, it's not clear because voice is breaking again and again. Okay. I'm Axis Monica. I think there is some network problem from your end. Ma'am, it's not clear. Camera is also not working properly. Voice is not clear. वीडियो भी फ्रीज हो गया है। Okay, just give me a moment. Okay, can you hear me now? Is it okay now? Voice is there, but Yes, ma'am. It's clear, but video is not. Video is not clear. Okay, anyway, no problem. Let's we'll conclude the session here, and then probably on Monday we'll carry it forward. Okay. Acha, a very important thing. Anybody who has not completed the quiz, I'll ask Krishna ji to open again in the weekend. If you have not attempted, Monday we are going to discuss all the questions. Yes, Shailendra ji. No, so I have not attempted the quiz. The last week I was not available actually, so I couldn't do it. कोई बात नहीं शैलेंद्र जी, 15 क्वेश्चंस है, आप कर लीजिएगा, है ना। मैं कृष्णा जी को बोलूंगी कि वीकेंड के लिए ओपन कर दे। Yeah, so I'll try on the whoever weekend. who has not completed. Ma'am, it's not opening. And second thing, yes, I said कृष्णा जी को मैं बोलूंगी वीकेंड में ओपन कर दे, अभी तो नहीं होगा, बट कर देंगे, he'll make it active, okay? But श्रुति जी, उसके आंसर्स तो सारे डिस्क्लोज हो चुके हैं। हाँ श्रुति जी, yes, all the answers have been disclosed. Huh? Said,
So now there is no Ma'am, point in So attempting the it's quiz. there in the app. Or should I call? It's all there. Is it open for the people who not attend the quiz? Yes. It is open for everyone. Oh, okay, no problem. There is no harm in discussing. What I personally feel is that the discussion will always be there in the memory, not the questions itself. Okay, so it is better. We can have a Whatever you discussion on want that. to But till now. Okay, and second, yes, very important. All to go through whether you know the answer or not, but attempt the quiz. Okay. Yes, it will register at least something in your mind. And yes, so we are planning to conduct one workshop. I think I told you when we had done Shat Karmas days workshop, it was already in plan, like some more people to experience most of the cleansing techniques. Shuddhi Kriya, like open only for 20 people, 20 to the max. And then we'll open, whoever is interested, I will send the details in the group. Shruti ma'am can see. your voice is cracking. I'm not audible. Oh my God. Okay, no problem. Let us take this on. Whoever wants to join the workshop, I'll send a separate one it in the group. You join that group and then further instructions I'll drop in the group. Okay? Is it okay with all of you? So I'm just going to simply send the link of the group and mention the name of the workshop and all of that. You just join the group. Whatever questions you have, we'll discuss further in the separate group. Okay. So, okay. Let us conclude the session. We'll see you all on Monday. Bye-bye. Namaste. Have a good day ahead.